बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे एंड कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आपको ये पार्लियामेंट्री सेशन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। तो नो कास्टेस, नो रिलीजियस कमेंट्स एनीवेयर, प्लीज। मूविंग टू द नेक्स्ट स्पीकर, independent. So point of order. Point of order, yeah, please. Sir, they stated in their speech that this bill nowhere talks about the Christians and Muslims. Sir, right of order. Sir, this bill. I'm getting the mic. Sir, they stated that this bill nowhere talks about the Muslims and Christian community. But when this bill will be passed and will become the act, this will be applicable to equally to all the religions. Hence, that. It's not mentioned. It's not mentioned in the bill. Sir, if the wrong has happened to some of the communities they have stated, then it will be. Not in order. Not in order, please. Sir, point of order. Sir, point of order. Please. Sir, short. applies to all religious sites in the community. अरे सर एम्फोसिस किया है। मर्यादा बनाए रखिए। आप हमसे बात करिए। अभी आप डायरेक्टली जब तक कि वो कंप्लीट ना करे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जब तक कंप्लीट ना करे, आप उन्हें इंटरप्ट ना करिए। वो मुझसे हमसे बात कर रहे हैं और हमारे सामने पॉइंट रेज कर रहे हैं। एक्सटेंट में ही लिखा हुआ है। It shall apply to all religious sites and communities, especially इसलिए लिखा गया है सभापति महोदय, क्योंकि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख और ट्राइबल फेथ के साथ ही आक्रमणकारों ने गलत किया था, उन्हीं में फोर्स कन्वर्जन हुए थे। Still, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मैं बात मानता हूँ आपकी बात, but it's still not an order. It's still not an order. Yes. But उन्होंने जैसे कहा कि क्रिश्चियंस की बात ही नहीं हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा it will apply to all communities, but especially to the Sanatan community. जी अथया जी। Sanatan includes all 4 religions. Okay, please. Right to answer, yes, please. Please, Mike. It might have been mentioned in the. Please get her the mic. Let her answer. Honorable Speaker, I agree that somewhere in the bill there might have been mention that it applies to all religious communities in India, but I was referring specifically to the preamble where they are not mentioned and only the. Okay, thank you. We'll move to the next. So next, Honorable Minister of Education, Anushka Tripathi ji, please. Greetings to the honored speaker and other esteemed members present here. And this is Anushka and I'm representing Ministry of Education. And today I do not rise here to oppose peace, but I rise here to oppose the illusions built on peace. I would like to ask a simple question that what if your ancestral place is being seized, renamed, repainted, and then the law passes by saying that you cannot reclaim it back? Would you call it justice or just helplessness wrapped in legality? That, dear Speaker, is the heart of this Places of Worship Act, and I am totally opposing this act and in totally favor of the complete restoration and justice of Places Act. Because as a Minister of Education, I believe that our youth deserves unfiltered facts and Jai Hind, Jai Bharat. We'll move to the independent block. The first speaker in the independent block, Mr. Raj. Raj, yes. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दलीय निष्ठा के बाहर से नहीं, भारत की अंतरात्मा की आवाज से खड़ा हूँ। एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस विधेयक को राजनीतिक धर्म या धर्म के नतीजे से नहीं देखता हूँ। मैं इसे सत्य, न्याय और विरासत के नजरिए से देखता हूँ। सदियों से भारत के पवित्र स्थल जैसे मथुरा से लेकर काशी तक, आदिवासी तीर्थ स्थलों से लेकर प्राचीन विहारों तक आक्रमणों से जबरन धर्मतन शिकार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बात का दर्ज लीजिए कि यह विधेयक कोई सांप्रदायिक हमला नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत समाधान है। धन्यवाद। Mr. Rehan Ali next. Yeah.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बिल का विरोध करने आया हूँ। मैं आपको एक जिंदा मिसाल एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ यूगोस्लाविया का। ये एक यूरोप का देश हुआ करता था, मल्टी एथनिक, बिल्कुल भारत के जैसा देश था, पर लोगों ने रिलीजियस के नाम पे हिस्ट्री खोदना शुरू किया और यूगोस्लाविया आज मैप पर भी नहीं बचा है तो सिर्फ उसके टुकड़े ऑस्ट्रिया और साइबेरिया। आगे मैं कहना चाहता हूँ we will not allow certain comparisons with our country. This is insulting to our nation, so I'll not have it. सर कंपैरिजन तो मैंने मेरे स्पीच में बोला ही नहीं, मैंने एग्जाम्पल बोला। एग्जाम्पल और कंपैरिजन हैज अ डिफरेंस। Continue, but don't compare. नो आई डिडंट कंपेयर, आई जस्ट सेड एग्जाम्पल। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि 1991 का जो एक्ट हमने बनाया था, प्रेजेंट किया था, वो ताला था कम्युनल दंगों पर बीजेपी पर अब रूलिंग गवर्नमेंट उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। ये कम्युनल दंगे लगाने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, भारत को गिराने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। Speaker sir, point of parliamentary inquiry. Right to reply. Yes. Sir, the statement which is made by the honorable member of parliament regarding कि भारत को गिराने की कोशिश की जा रही है, इसको सर प्लीज रिकॉर्ड, सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाएगा 100% भारत के एकता अखंडता के विरुद्ध है सर ये इस पॉइंट को हटाया जाएगा। एंड माय नेम इज अर्जुन राय सर। सर राइट टू आंसर। सर राइट टू रिप्लाई। Who wants to answer? Just pick one. Sir right to reply. Speaker sir. Yeah, please. You answer. What's your name? Vaidesh. Okay, Vaidesh. Tell me. मेरा कांग्रेस से ये सवाल है कि आपने हम कांग्रेस है ही नहीं, क्वेश्चन लिया ही नहीं जाए। सर एक नाइव मिस्टेक है। विपक्ष से ये सवाल है कि आपने ये एक्ट को एकदम जल्दी में पार्लियामेंट में पास किया, इससे बहुत सारे लूपहोल्स निकल आए हैं इस एक्ट में, तो आपको इसका क्या उत्तर देना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इसको ऑफ रिकॉर्ड रखते हैं। क्वेश्चन इसको पूछना था। स्पीकर सर। अरे आपको मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, आपको मैं पूरा बोलने दे रहा हूँ अच्छे से। अभी 30 कितना आपने 60 सेकंड बढ़ाया था हमने, इनका 60 सेकंड आपका बढ़ा था अच्छे से। 120 सेकंड्स यू बिकॉज मैंने इंटरप्ट किया था, आई गिव यू 60 सेकंड्स मोर। सो पक्ष विपक्ष दोनों ही किए और क्वेश्चन बच्चा है नहीं पूछ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर राइट टू रिप्लाई सर। डिपेंडेंट भी है। स्पीकर सर राइट टू रिप्लाई सर। राइट टू रिप्लाई। यस जोगी जी। अभी अध्यक्ष महोदय विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि जो हम कानून लेके आए हैं इससे धार्मिक विवाद बढ़ेगा। मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं, इस कानून से धार्मिक विवाद फिर से शुरू नहीं होगा, पक्ष में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब धार्मिक विवाद बढ़ेगा, आप लोग विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि ये कानून धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन जो आपका 1993 का कानून है, ये तो सभी धर्मों को न्याय की लड़ाई लड़ने का भी मौका नहीं देता है। ये कैसे कानून है? और मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूँ, सदन में कानून लाते हैं और एक इलेक्शन भी है, हमें बता देना। योगी जी टाइम साहब। नेक्स्ट स्पीकर गुरमीत सिंह भट्ट, ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना 60 सेकंड से पॉइंट्स रखिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय महाराष्ट्र। मैं गुरमीत सिंह भट्ट माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर होने के तहत आपके सामने कुछ आज के बिल के ऊपर क्लैरिटी देना चाहूंगा। जी ये बिल सिर्फ एक बिल नहीं है, इट्स मोर देन अ बिल। जी हाँ, ये बिल उन
शहीदों की आवाज है जिन्होंने आखिरी दम तक